Dear students, today I am going to start with the revision of the chapter The Portrait of a Lady. It is written by Khushwant Singh. Is that clear? Khushwant Singh is an English poet, English writer, and he is an Indian. Is that clear? So it is his very interesting story about her grandmother. The name of the story is The Portrait of a Lady. And portraits are here of two types. One is the painting portrait and another one is pen portrait. The portrait drawn with the help of words, with the help of sentences, with the help of story, or with the help of writing. If a writer draws a portrait of a person, that the grandmother was looking in that way, she has got crisscross over her face and other things, her hairs are like this and that, and all these things are known as pen portraits. So here it is a story about the portrait of a lady, and the portrait of a lady is of the grandmother, Khushwant Singh's own grandmother. It is a true story of his. Is that clear? So just listen to the story. Main points are here. Just listen to the points, and it is your revision of the chapter. So, main points of the chapter. The author's grandmother was a very old woman. Author की जो दादी माँ है वो बहुत ही बूढ़ी औरत है. She was so very old that it was difficult to imagine she could ever have been young and pretty or had even a husband. She was so very old. वो इतनी ज़्यादा old थी that it was difficult to imagine, कि ये imagine करना भी बहुत मुश्किल था. She could ever have been young and pretty, कि क्या कभी वो young भी रही होंगी या खूबसूरत भी रही होंगे, और had even a husband, कि कभी उनके कोई husband भी होंगे. ये सब यकीन ही नहीं हो रहा राइटर को. His grandfather, whose portrait hung in the drawing room, उसके दादाजी जो कि इस चैप्टर में ओरिजिनली नहीं है बट उनका पोर्ट्रेट है यहाँ पर, whose portrait hung in the drawing room, जिनका पोर्ट्रेट, उसके दादाजी का पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है, was already dead, उनकी डेथ हो चुकी है. He too looked very old, और दादाजी भी बहुत ओल्ड नजर आ रहे हैं. So very old that he did not look the sort of person who would have a wife or children. और वो इतने ओल्ड लग रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि कभी इनके अपने बच्चे और इनकी वाइफ भी थी. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. दादाजी ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनके grandchildren तो हो सकते हैं पर अपने बच्चे नहीं हो सकते. वो दादाजी जैसे, ओरिजिनल दादाजी जैसी लुक वाले थे. The author says that his grandmother's face was a crisscross of wrinkles. The author says, लेखक कहता है that his grandmother's face, उसकी दादी जी का जो चेहरा है, was a crisscross. Crisscross क्या होता है बेटा? Wrinkles की cross, lines and again lines, crisscross, cross पड़ रहा है उनके, उस पर wrinkles का cross पड़ रहा है. Crisscross of wrinkles, उनके चेहरे पर wrinkles ही wrinkles हैं, उनके crisscross पूरी बॉडी पर, पूरे चेहरे पर हैं. She had even silver locks, उनके जो बाल हैं वो कर्ली हैं, सिल्वर कलर के, वाइटिश कलर के सिल्वर कलर के बाल हैं और वो कर्ली हेयर हैं. शी हैड अ स्टूप इन हर बैक, और उनकी कमर में स्टूप है. स्टूप क्या होता है बेटा? कुबड़, मतलब एक कमर झुकी हुई है, पीछे से वो अंदर को, मतलब बाहर को निकली हुई है और आगे से वो अंदर को झुकी हुई है, तो पीछे जो निकला होता है उसे स्टूप कहते हैं. तो उनकी कमर में एक स्टूप निकला हुआ है. शी हैड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, एक हाथ वो अपना कमर पर रखती हैं, इन ऑर्डर टू कीप हर बैलेंस वाइल मूविंग अबाउट. जब वो घर में इधर उधर घूमती हैं तो एक हाथ उनका कमर पे होता है अपनी कमर को सहारा देने के लिए. शी वोर स्पॉटलेसली वाइट क्लोथ्स, वो बिल्कुल बिना दाग रहित कपड़े, वाइट कपड़े पहनती है जिस पर एक दाना, एक तिनके का भी दाग नहीं है, और वाइट कलर के क्लोथ्स हैं उनके. शी ऑलवेज केप्ट टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, वो हमेशा अपनी रोजरी, एक माला होती है बेटा, मोतियों वाली माला होती है, उसके बीड्स को वो फेरती रहती है. पूजा का पाठ जैसे पाठ करते हैं कुछ लोग अपने हाथ में रोजरी लेकर, तो एक हाथ उनका बैक पर लगा होता है और एक हाथ में उनकी रोजरी होती है. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अ साइलेंट प्रेयर, और उनके लिप्स हमेशा एक प्रेयर,
एक मन में मतलब एक पूजा प्रेयर सी प्रार्थना सी वो ऑलवेज करती रहती है अपने गुरु नानक जी को, या जिसकी भी वो मन में पूजा करती है, मेडिटेशन करती हैं, उनका वो नाम ऑलवेज जपती रहती हैं। द ऑथर लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर इन द विलेज। लेखक जो है अपनी दादी माँ के साथ एक गाँव में रहता है। हिज पेरेंट्स हैड मूव टू द सिटी। उसके पेरेंट्स जो हैं वो इस सिटी में मूव कर चुके हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द ग्रैंडमदर वोक अप द ऑथर एंड प्रिपेयर्ड हिम फॉर स्कूल। हर सुबह दादी माँ अपने पोते को, ऑथर को, मीन्स हमारे खुशवंत सिंह को, राइटर को उठाती हैं एंड प्रिपेयर हिम फॉर स्कूल, और उसे स्कूल के लिए तैयार करती हैं क्योंकि दादी पोता अकेले घर पे रहते हैं। देन आफ्टर ब्रेकफास्ट बोथ ऑफ देम लेफ्ट फॉर स्कूल। और दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। शी कैरिड सम स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। शी कैरिड, वो अपने साथ लेकर चलती हैं, सम स्टेल चपातीज, कुछ बासी चपातीज, जो रात को बनाई हुई चपातीज हैं उनको वो लेकर चलती हैं। विद हर फॉर द डॉग्स, विलेज डॉग्स, वो अपने साथ कुछ रोटियां लेकर जाती हैं और वो विलेज डॉग्स को देती हैं। द विलेज स्कूल was attached to the temple, और विलेज का जो स्कूल है वो टेम्पल से अटैच्ड है। इज दैट क्लियर? तो बेटा विलेज का जो स्कूल है वो टेम्पल से अटैच्ड है। द प्रीस्ट टॉट द चिल्ड्रन द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट है, वहाँ का जो पंडित है उस विलेज टेम्पल का, वो उन्हें अल्फ़ाबेट्स भी सिखाता है और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता है। वाइल द ऑथर स्टडीड इन द वरांडा अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन। जो हमारे ऑथर हैं खुशवंत सिंह, वो टेम्पल के वरांडा में बाकी बच्चों के साथ स्टडी करते हैं। और पढ़ाने वाला कौन है? प्रीस्ट है, पंडित है। His grandmother sat inside reading the scriptures. जब बच्चे बाहर वरामदा में पढ़ रहे होते हैं तो उसकी दादी माँ अंदर, मंदिर के अंदर वाले जो एक छोटा सा बिल्डिंग होती है उसके वरामदा में बच्चे पढ़ रहे हैं और अंदर वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती हैं, वेद पुराण जो भी मंदिर में रखे हैं वो उनकी स्टडी करती हैं। आफ्टर स्कूल द टू वॉक्ड बैक होम टुगेदर। और दोनों स्कूल के बाद घर की तरफ चलते हैं। दे वुड फीड द विलेज डॉग्स विद द चपातीज दे हैड विद देम। दे वुड फीड द विलेज डॉग्स, वो गाँव के कुत्तों को वो स्टेल चपातीज खिलाती हैं। विद द चपातीज दे हैड विद देम, जो वो स्टेल चपातीज अपने साथ लेकर आई हैं, बासी रात की बनी चपातीज वो अपने साथ लेकर आई हैं, उसको वो कुत्तों को देती हुई चलती हैं। The author and his grandmother had now started living in the city with the author's parents. अब ऑथर और उसकी दादी माँ अब सिटी में रहना शुरू हो गए हैं ऑथर के पेरेंट्स के साथ। उसके पेरेंट्स जो हैं, मम्मी पापा जो हैं, दादी को भी और पोते को भी, मतलब उनके पोते को भी साथ ले गए। खुशवंत सिंह को और दादी माँ को गांव से वो शहर में ले आए हैं। द ऑथर वॉज सेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। ऑथर को इंग्लिश स्कूल में सिटी में भेजा गया पढ़ने के लिए। सिंस देयर वर नो डॉग्स इन द सिटी, क्योंकि अब सिटी में कोई गली के कुत्ते नहीं है। ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज। दादी माँ ने वहाँ स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया, स्पैरोज को भोजन कराना, स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स खिलानी शुरू कर दी। शी वॉज अनहैप्पी। शहर में आकर वो इतनी खुश नहीं थी दैट शी कुड नॉट नो लॉन्गर हेल्प द ऑथर विद हिज लेसन्स। अब वो यहाँ पर आकर दादी माँ जो है पोते के साथ शहर में आकर खुश नहीं है, क्योंकि अब वो अपने पोते को ज़्यादा पढ़ाई में हेल्प नहीं कर सकती। वो बड़ी क्लासेस में आ गया है, शहर के स्कूल में पढ़ने लगा है। मोर ओवर शी हेटेड मैनी ऑफ द थिंग्स इट वॉज टॉट इन हिज स्कूल्स। और खुशवंत सिंह को जो भी उसके स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आके डिस्कस करता है अपनी दादी माँ से। तो माँ को काफ़ी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं हैं। Thus a great change came in their friendship. इस तरीके से खुशवंत सिंह की और दादी माँ के फ्रेंडशिप में बहुत बड़ा चेंज आया। Now she rarely talked to him. अब दादी माँ उससे, खुशवंत सिंह से ज़्यादा बातें नहीं करती, क्योंकि वो स्कूल से आता है, अपने पढ़ाई में लग जाता है, तो ज़्यादा बातें दोनों की दादी पोते की नहीं होती। The author was given a separate room in the house when he went up to the university. अब जब बच्चा और बड़ा हो गया, जब ऑथर और ज़्यादा बड़ा हो गया, तो वो उसको एक सेपरेट रूम मिल गया है। उसे क्या मिल गया है बेटा? अब उसे एक सेपरेट रूम दे दिया गया है, क्योंकि वो बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा है। नाउ द ग्रैंड मदर स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील। इस समय जब पोता अपने स्टडीज़ में बिजी हो गया है, यूनिवर्सिटी में बिजी हो गया, तो दादी माँ क्या करती है? स्पिनिंग व्हील पर अपना टाइम लगाती है। स्पिनिंग व्हील होता है बेटा चरखा काटने में, वो अपना समय लगाती है। ऑल द टाइम शी केप्ट रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब भी वो जो भी कुछ करती हैं वो प्रेयर्स गाती रहती हैं। इन द आफ्टरनून शी थ्रू लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड टू द स्पैरोज। और दोपहर के समय वो अब छोटे छोटे बिट्स ऑफ
ब्रेड, कुछ भी चपाती के छोटे छोटे टुकड़े करके वो स्पैरोज को खाना खिलाती हैं. एंड स्पैरोज हु केम इन हंड्रेड्स एंड सेट अराउंड हर, और हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ पर दादी माँ के पास आती हैं और वो ब्रेड क्रम्स या चपाती के टुकड़े खाती हैं. सम इवन पर्स्ड ऑन हर लेग्स एंड शोल्डर्स, कुछ तो उनके उड़कर आकर उनकी लेग्स पर और उनके शोल्डर पर भी बैठ जाती हैं, कुछ बर्ड्स, कुछ स्पैरोज. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये दादी माँ का सबसे हैप्पीएस्ट आधा घंटा होता है पूरे दिन का. याद रखना बेटा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं. इज दैट क्लियर? तो ये हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर होता है दादी माँ का पूरे दिन का. द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर 5 years फॉर फर्दर स्टडीज. ऑथर जो है वो फॉरेन गया है 5 years की स्टडीज के लिए. अब क्या होता है, आफ्टर यूनिवर्सिटी स्टडीज ही वेंट टू द फॉरेन कंट्री फॉर फर्दर स्टडीज. ग्रैंड मदर केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ, और दादी माँ उसे सी ऑफ करने आती हैं, बाय बाय करने रेलवे स्टेशन तक आती हैं. शी डिड नॉट शो एनी इमोशन. जब उनका पोता फॉरेन कंट्री जा रहा है और 5 years के लिए जा रहा है, दादी माँ ने उसे कोई भी भाव, कोई भी इमोशंस नहीं दिखाए. हर लिप्स वर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन प्रेयर एंड हर फिंगर्स वर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. उनके फिंगर्स जो, उनकी जो लिप्स थे वो पूरे प्रेयर में गुनगुना रहे थे रेगुलरली, और उनके फिंगर्स जो थी वो रोजरी, जो माला थी जिसको वो जपा करती थी, उसके बीट्स को वो मतलब आगे आगे चलाती रही. शी किस्ड द ऑथर्स फोरहेड एज द ट्रेन लेफ्ट. जैसे ही ट्रेन लेफ्ट होने लगी तो दादी माँ ने ऑथर के फोरहेड पर किस किया, प्यार किया. द ऑथर केम बैक आफ्टर 5 years, और इसी तरह से 5 साल बीत गए और ऑथर अपनी स्टडीज करके, हायर स्टडीज करके वापस आ रहा था. ग्रैंड मदर डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. दादी माँ जो है पोते को एक दिन भी ज़्यादा ओल्डर नहीं लगी. जैसे वो छोड़कर गया था 5 साल पहले, वैसे ही दादी माँ मिली. शी रिसीव द ऑथर अफेक्शनेटली. जो दादी माँ है वो ऑथर से बड़े प्यार से मिलती हैं. शी फेड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून. दोपहर में उन्होंने स्पैरोज को भी ब्रेड क्रम्स दिए. एंड इन द इवनिंग शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड. और शाम के समय उन्होंने आसपास की लेडीज़ को इकट्ठा कर लिया. देन शी टुक एन ओल्ड ड्रम एंड सैंग फॉर मेनी आवर्स. फिर उन्होंने एक पुरानी ढोलकी उठा ली. किसने उठा ली? दादी माँ ने एक पुरानी सी ढोलकी उठा ली, और सारा ये शाम को वो पूरा टाइम, कई घंटों तक वो ढोलकी बजा बजा कर नाच गाने करती रही. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द ऑथर हैड नॉट सीन हर से हर इवनिंग प्रेयर्स. ये पहला टाइम था जब ऑथर ने देखा कि आज दादी माँ प्रेयर नहीं कर रही हैं, अपने रोजरी बीट से प्रेयर नहीं कर रही हैं, बल्कि वो अपना सारा टाइम किसमें स्पेंड कर लिया, नाच गाने में कर रही हैं. तो ये चीज़ पहली बार राइटर ने देखी थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंड मदर वॉज टेकन इल, और अगली सुबह, शाम पूरा नाच गाने में बिताया, अगली सुबह दादी माँ बीमार हो जाती हैं. इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का बुखार था. बट शी सेड दैट हर एंड वॉज नियर. पर दादी माँ ने कहा यह हल्का फुल्का बुखार नहीं, ये मेरा अंत नज़दीक आ गया है, मतलब मुझे मरने के दिन पास आ गए हैं. शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी टाइम इन टॉकिंग टू एनीबडी. वो एक भी पल अपना किसी के साथ भी बातें करके बिताना नहीं चाहती थी दादी माँ. शी स्टार्टेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वो प्रेयर करना शुरू करती हैं और अपने जो मोती है, रोजरी माला जो है, उसके मोती को हाथ से फेरती रहती है. इवन बिफोर एनीबडी कुड सस्पेक्ट. अभी कोई शंका ही करता, शी वॉज डेड. अभी कोई संदेह करता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, दादी माँ की डेथ हो जाती है. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और वो जो रोजरी माला है वो उसके जान रहित, लाइफलेस मतलब जीवन रहित फिंगर्स, उनकी डेड बॉडी के पास से, उनके हाथ से वो छूट जाती है रोजरी की माला. अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द ग्रैंड मदर्स फ्यूनरल. और उसके बाद दादी माँ के अंतिम संस्कार, फ्यूनरल क्या होता है बेटा, अंतिम संस्कार के रस्म का प्रोग्रामिंग शुरू हो गई. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज केम एंड सैट साइलेंटली अराउंड ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी. और जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को वहाँ रखा हुआ था, तब उसके पास हज़ारों स्पैरोज वहाँ पर आई और चुपचाप साइलेंटली बैठ गई. द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम, बट द बर्ड्स टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. और जब देखा खुशवंत सिंह की मम्मा ने कि भाई बहुत सारे स्पैरोज आ गई हैं, तो उन्होंने उनके पास ब्रेड क्रम्स डाले, चपाती के टुकड़े करके उनके पास डाले. बट उन बर्ड्स ने, एक भी बर्ड ने खाने की तरफ इशारा नहीं किया, खाने की तरफ नज़र नहीं फेरी. वो चुपचाप वहाँ पर रुकी रही, बिल्कुल शांत रही. व्हेन ग्रैंडमदर्स डेड बॉडी वाज कैरिड ऑफ टू बी क्रेमेटेड. और जब दादी माँ की डेड बॉडी
जो थी वो चिता में जलाने के लिए ले जाई जाने लगी. द स्पैरोज क्वाइटली फ्लू अवे. वो जो बर्ड्स थी, स्पैरोज थी, वो सारी की सारी चुपचाप उड़ गई. उन्होंने एक बिट ऑफ ब्रेड क्रम्स को टच भी नहीं किया और ना ही उन्होंने चिरपिंग की. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. अगली सुबह वो तब पूरा दिन वो बर्ड्स का जो ब्रेड क्रम्स थी वो वहीं पर पड़ी रही और स्वीपर ने अगले दिन उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में थ्रो किया झाड़ू लगाकर. इज दैट क्लियर? दिस वॉज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. Just go through the story carefully and then we will start doing the question answers. Is that clear? Thank you.